I can't believe that I'm doing this. But I wanted to make a YouTube channel for so long. Like from the very beginning of my MBBS days, I wanted to make a YouTube channel because I have seen people making YouTube content and I also wanted to make one. But things were not going right, and it was getting delayed and delayed every day. But now things are getting into place. Now I have the reason to start a YouTube channel, and I am really excited to share my experiences, my journey with you all. And I can finally say that welcome to my channel. And this video I have created is all about my experiences, my journey, my introduction. This is not at all any strategy video. I am planning to make a strategy video in the next coming video, but this is not a strategy video. So my introduction, I am Dr. Navdha Agrawal and I belong to Kashipur, a small city in Uttarakhand. I did my MBBS from Sri Guru Ram Rai Institute of Medical Science, which is a private institute in Dehradun in Uttarakhand, and I belong to 2019 batch. So my internship just ended in April 2025, and I am really proud to say that this is my internship attempt. And being from a private college, it is really difficult, and people normally judge you that you are from a private college, you can't do things, you can't crack a government exam, but this is not the truth. So let's not make this video much long. Let's keep it short so that you can also like see it and I can also be able to make this. So going back to my school days, after passing my 10th exam, I was very unsure that what I have to do. I didn't have any idea what my choices are. So I took both maths and bio, दोनों ही ले ली. And I at that time I was very aimless. मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. बट माई इंटरेस्ट डेवलप्ड इन मैथ्स. मेरे को मैथ्स साइड्स पर ज़्यादा इंक्लिनेशन थी एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी और नीट. और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है. सो आई जस्ट स्टडीड अकॉर्डिंगली, जो स्कूल में पढ़ाते थे वो पढ़ लिया नॉर्मली. इन 12th आई गॉट गुड ग्रेड्स. देन आई थॉट ऑफ गिविंग जेई. आई गेव जेई, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. इंजीनियरिंग तो मेरे से नहीं हो सकती है. मतलब आई एम नॉट द पर्सन हु लाइक्स दैट मच ऑफ मैथ्स. मतलब ठीक है, पसंद थी पर इतनी भी नहीं भाई इंजीनियरिंग लेवल की नहीं. सो देन आई शिफ्टेड टू नीट. उस टाइम पर मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कोई कोचिंग वगैरह होती है, बिकॉज कभी उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया. तो कोचिंग वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं था. आई जस्ट गेव नीट. जितनी प्रिपरेशन थी, जितना 12th में पढ़ा था, ट्यूशन में पढ़ा था, उसके बेसिस पर आई गेव माई नीट यूजी एंड आई गॉट अराउंड 430 मार्क्स विदाउट एनी लाइक स्पेशल प्रिपरेशन. आई जस्ट गेव इट एज इट इज़. सो आई टुक एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज बिकॉज देर वॉज नो बडी टू गाइड मी कि ड्रॉप ले लो. मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ऐसा भी होता है कि ड्रॉप ले सकते हैं. सो आई जस्ट took admission in a private college, which I would say I had no regrets of, because at that time it was the right choice which I had made. तो अभी कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का. एंड आई हैव एन्जॉयड माई MBBS days. They were really good. Then during my MBBS time, when I took admission, everything was very new because I had none exposure of that before. जिन लोगों की फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों को पता होता है कि हाँ ऐसा होना है, बट everything was very new to me and I enjoyed every bit of it. मेरे को हर चीज़ अच्छा लगता था. Everything was a new experience for me. Dissection hall, physiology lab, biochemistry. चलो biochemistry was a little bit of chemistry also, तो उसको link हो जाता था, but anatomy and physiology were very new and I was really enjoying it. Then COVID came. फिर COVID में घर आ गए. घर आने पर सारा स्केड्यूल उल्टा हो गया. देन आई रिमेंबर कोविड टाइम पर हमारा सेकेंड ईयर था एंड आई कम्प्लीटेड माई सेकेंड ईयर सिलेबस इन कोविड ओनली. फिर उसके बाद थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स तो एक दिन मतलब एग्ज़ाम्स दे दिए थे जाके. एंड थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में वी वर कॉल्ड इन द कॉलेज. हम लोग कॉलेज गए. थर्ड ईयर में ENT ऑफ था. लाइक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड ईयर. सो दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज वी वर एक्चुअली स्टडिंग मेडिसिन एट दैट टाइम. उससे पहले तो सब प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल्स होते थे, तो इतना एड्रेनलिन रश नहीं होता था उसमें. आफ्टर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स उसमें तुम हॉस्पिटल्स जा रहे हो और पेशेंट को क्लिनिकल एग्जामिनेशन करो. दैट वॉज रियली अ फन पार्ट फॉर मी. देन ड्यूरिंग माई फोर्थ ईयर आई रिमेंबर कि मेरे को कॉन्फ्रेंसेज में जाने का क्रेज़ लगा. दैट आई वॉज रियली इन टू गोइंग कॉन्फ्रेंसेज. सो आई अटेंडेड मेड्सकॉन, आई अटेंडेड क्लिनिकेज, लाइक आई हैव अटेंडेड मैनी वर्कशॉप्स एट दैट टाइम. एंड उसकी वजह से मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई एंड आई गॉट डिटेन्ड इन माई फाइनल ईयर. बट समहाउ आई मैनेज्ड to somewhat I managed to, what would I say, to complete my incomplete classes by attending the extra classes. तो उससे मैनेज हो गया था. देन आई गेव माई फाइनल ईयर पेपर. आई हैव ऑलवेज बीन इन top 5 in my college. So after final year ended, our internship started. Like after 6 days of break, our internship started. So
on the very first day of our internship, I still remember that I was posted in ultrasound room because I we had this elective posting of our first posting, in which we have to choose from three: respiratory medicine, respiratory medicine, radiology and pathology. So I chose radiology because सब कहते थे रेडियो में जाना नहीं होता है, हॉस्टल में बैठो मजे करो, नहीं जाना होता है. एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स टुक रेडियो, सो आई ऑल्सो टुक रेडियो, बट ऐसा नहीं था, रेडियो में जाना होता था बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट पोस्टिंग और हमें इतना आइडिया भी नहीं था. सो वी यूज टू गो टू रेडियो एंड हम मतलब हमारी सबकी अल्ट्रासाउंड में ही ड्यूटी लगती थी बिकॉज CT MRI तो कंसल्टेंट्स बैठते थे, तो हमारी अल्ट्रासाउंड में ड्यूटी लगती थी. तो देयर वॉज दिस वन SR इन अल्ट्रासाउंड whom I used to sit with. On the very first day he asked me कि क्या करना है तेरे को. मैंने बोला पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज. मेरे को अब प्राइवेट कॉलेज में नहीं रहना है बिकॉज for me it was not the place I wanted to be in. I was from the very starting, I was a kid who liked to be in many committees. like स्कूल से ही मेरे को डांसिंग कमेटी का और आर्ट कमेटी का हर चीज़ का पार्ट थी मैं. बट प्राइवेट कॉलेज में कोई कमेटी होती ही नहीं. हमारे कॉलेज में कोई कमेटी नहीं थी. हमारे कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होती थी, ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई डांस, ना कोई ड्राइंग, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, नथिंग. सो आई वॉज जस्ट वेरी स्टक इन टू स्टडीज़ ओनली, कि कुछ करने के लिए है ही नहीं उसके अलावा. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ दैट कल्चर इन टू सम गुड कॉलेज. सो मेरा बस यही एम था कि मेरे को एक अच्छी रैंक लानी है. मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, जस्ट वॉन्टेड टू गेट अ गुड रैंक. सो आई जस्ट न्यू दिस थिंग ओनली. सो ही आस्क्ड मी कि क्या करना है. मैंने बोला मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. सो ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस. जो अल्ट्रासाउंड पे उस टाइम पर मेरे को याद है एक सेफनोफेमोरल जंक्शन का एक पेशेंट आया था, तो ही आस्क्ड मी कौन सा साइन है. तो तब तो नया नया पढ़ा था फाइनल ईयर में कि हाँ मिक्की माउस साइन होता है, तो फ्रेश नॉलेज थी, तो बता दिया, सारे उसका आंसर दे दिया. ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ भाई पढ़ने वाली बच्ची है. तो ही जेन्युइनली मोटिवेटेड मी कि तू कर, तू अच्छा कर लेगी और तू पढ़ाई कर और ऐसे ऐसे कर. ही गाइडेड मी कि ये कर, ये सब्जेक्ट उठा, ये कर. सो आई फॉलोड हिम. मैंने अगले दिन से लाइक फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ माई इंटर्नशिप रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दिया विदाउट नोइंग कि भाई क्या करना है. कुछ बस स्टार्ट कर दिया पढ़ना जोश जोश में आके. देन आफ्टर 2 months आई केम टू नो अबाउट BTR एंड ऑल, सो आई शिफ्टेड टू दैट. And then my serious preparation journey started after 2 months of my internship. And when my internship ended, I got an extension of 4 months. You won't believe I got an extension of 4 months. So सब लोग चले गए थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोग तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द पीपल वेंट होम. और हम ही कुछ लोग रह गए थे हॉस्पिटल में जो इंटर्नशिप कर रहे थे. बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कब खत्म हो जल्दी और हम घर जाएँ. बट ट्रस्ट मी व्हेन इट एंडेड एंड आई केम बैक होम, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी. घर पे कुछ पढ़ाई नहीं होती मेरी. सो आई जस्ट क्लोज ऑल माई बुक्स फॉर 2 months. आफ्टर 2 months इन टू माई होम आई स्टार्टेड अगेन. मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी. आफ्टर सम एडजस्टमेंट इन माई होम आई स्टार्टेड अगेन. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट आई हैव टू डू इट दिस टाइम ओनली. बिकॉज मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ये था कि ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप के बाद करेंगे. बट बाद में लगा कि नहीं यार, एक साल आई कान डू 1 year ऑफ पढ़ाई अगेन. दिस इज़ नॉट इन माई हैंड. सो मैंने फिर 3 महीना लगातार बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड आई वॉज एबल टू गेट अ गुड रैंक इन एम्स in May INI-SET also. So I got a rank of 3000 in May INI-SET 2025. After May INI-SET I realized कि हाँ ठीक है, थोड़ी प्रिपरेशन तो है ही कि नीट में विद इन 10,000 आ जाएगी. बिकॉज INI में कम कैंडिडेट्स होते हैं तो बेटर रैंक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नीट में कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो रैंक डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो आई थॉट कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. नहीं होगा तो वैसे भी तो यही सोच रखा था कि नेक्स्ट ईयर लेना है. सो आई विल डू इट. सो आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 more month एंड नीट के जस्ट एक हफ्ता पहले इतना सीवियर बर्नआउट हो गया मेरा दैट आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम बेड ऑल्सो. एक हफ्ता पूरा आई रिमेंबर बेड पे ही खाना आता था, बेड पे ही खाती थी, पढ़ती तो बिल्कुल ही नहीं थी. लास्ट के एक हफ्ता आई हैवेंट स्टडीड बिल्कुल भी, इतना गंदा बर्नआउट हो गया था. बट नीट के एक रात पहले, एक दिन पहले आई वुड से, इतना डर लग गया दैट आई स्टडीड कॉन्टीन्यूसली फॉर 6 hours ऑन द लास्ट डे ऑफ नीट. और फिर दोबारा से बर्नआउट हो गया. सो आई वॉच द मूवी. पूरी रात मैंने नीट के पूरी रात मैंने मूवी देखी है बैठ के. एंड आई एम स्टिल इन डिनाइल दैट मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई है. बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव नॉट डन अप टू माई फुल पोटेंशियल. आई हैव डन माई हार्ड वर्क बट नॉट एज आई वुड से नॉट एज गुड एज आई कैन. बट आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, चलो इस ब्रांच में मेरे को मेरी डिज़ायर्ड, इस रैंक पे मेरे को डिज़ायर्ड ब्रांच मिल जाएगी, डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाएगा. सो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड एंड आई एम रियली हैप्पी. So this is about me, this is about my journey, how I managed things. There were ups and downs also, yeah, I would say. There were days which on which I was not able to open my book at all. कुछ करने का मन नहीं करता था, वर्थलेस फील होता था कि प्राइवेट कॉलेज से भाई नहीं हुआ तो फिर से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, PG नहीं करनी प्राइवेट कॉलेज से. एंड ट्रस्ट मी, when you have your parents, when you have your friends supporting you, you can get up, you can do it again, you can restart. So my message to all of you is, if I can,
You can easily. Trust me, I am no special. मैंने भी वही पढ़ाई करी है जो सबने करी है, and everybody can crack this exam. It's just about the perfect strategy, how well you do it. So at the end, I just wanted to say, be consistent. Like, don't take too much of break, although I did, but I would say be consistent. And everybody has their own journey. Do not compare yourself with anybody. Make yourself a better version of yourself. Don't compare to anybody. And discipline is most important. Like, I was disciplined, I would say. Like, मेरे को internship में मस्ती भी करनी होती थी, मैं पार्टीज़ भी करती थी, बट आई यूज़ टू स्टडी ऑल्सो. अगर मेरे को रात को पार्टी में जाना था तो मैं दिन में पढ़ लेती थी. दिस इज़ माई अ प्लस पॉइंट, आई वुड से, कि अपनी पढ़ाई अप टू डेट रखो. जो तुम्हारा आज का टारगेट है, कंप्लीट दैट. बैकलॉग्स हर किसी के होते हैं, बट आई वुड से डू योर वर्क प्रॉपरली. एंड congratulations to all the people who have got a good rank, and to people who have not achieved their desired rank at this time, I would say don't lose hope. You have got next year, you have got even November INI, you can perform it well. And yeah, that's it. I would say this is quite a long video, but I hope that I didn't bore you. And next video, I'm thinking of making a strategy of what I did in my every subsequent year and how I prepared for NEET PG and INI. So if you have any queries or you want to ask me anything, you can comment down. And yeah, thank you. I hope you enjoyed it. Thank you so much.